ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હેમાંગીને ફોલો કરો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. Melanie, you do follow ઓકે સોરી Monica. હા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। Jai Sachidanand. Jai जय Sachidanand. सच्चिदानंद। Monica, can you do three mantra, please? हाँ जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, Namo Vitragai. नमो अरिहंताणं, Namo Arihantaram. नमो सिद्धाणं, Namo Siddharam. नमो आयरियाणं, Namo Ayariyaram. नमो वसायाणं, Namo Vasayaram. नमो लोय सवसाहुणं, Namo Loye Sava Sahuram. एसो पंचनमुक्कारो, Eso Panchanamukkaro. सर्वपावपनासनो, Savapavaparasano. मंगलानं च सर्वेसिं, Mangalaram Cha Savesing. परमं हवै मंगलम्। Paramam Havai Mangalam. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. Monica, I think you did an excellent score in your first test. दादा इतना एक्सेलेंट नहीं है, Huh? ट्रिपल ई में कम है, मार्क ट्रिपल ई में कम है और फिजिक्स में भी कम है। No, it's okay, but that's the first. Oh, now हाँ that's the first one, na? So you should still be okay. That the first one in college. It's not like school. It's different. It's different, है ना? Right? हाँ डिफरेंट है। So you have to get adjustment period. So now it's three self, and you should be able to do it. Okay. Daily prayer. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अंका से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दादा अनम्यूट। Yeah. हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शनों पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय Yeah. ईश्वत माझा भगवान आपला हो दक्ष लगे। Deepakanji. हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, फिर भी हैं कच्चे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। There's हाँ
હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો તીર્થ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો તીર્થ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો તીર્થ રિલેટિવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay. Chalo, we are doing self-confidence. So before we do self-confidence, Jia, હા દાદા. Monica, Jia हाँ. is struggling with physics. She says उसको concept आता है, but when concept comes to question, she gets frozen. तो can you help her out? कुछ help कर सकते हैं आप free time में? हाँ दादा. Okay, Jia, contact her. I send you her phone number. And she's also doing physics right now. I didn't know that first year college में you have to do physics. हाँ वो फर्स्ट सेम के लिए है, बाद में नहीं आएगा फिजिक्स. तो क्या अभी पढ़ते के हैं? लिए. फिजिक्स में क्या अभी के पढ़ते हैं? हाँ? फिजिक्स में 5 यूनिट्स है. वो 12th के रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं, लाइक क्रिस्टल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और मेजरमेंट्स वही होता है. वो मेजरमेंट क्या होता है अभी? उसमें हम रिजिडिटी मॉडुलस के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, और क्रिस्टल फिजिक्स में हम केमिस्ट्री के बारे में, एटम्स के बारे में डीपली स्टडी Oh, okay, it's not the measurement in per se, but different aspect of measurement, huh? Right? और सेमीकंडक्टर भी. You're breaking up, Monica. हाँ दादा. अब Okay, अभी बोलो. हाँ, हाँ. सुन. Okay. तो जिया, आपको कौन सा प्रॉब्लम होता है? मेरा क्वांटम वही और सेमीकंडक्टर. जिया? हाँ हाँ मुझे काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम्स होती है. Oh, kinetic. Okay. Okay. So you can help her in kinematics. Monica, you are not coming clear. Monica? हाँ दादा. Monica, दादा. yeah, kinematics, you can help her? हाँ दादा, काइनेमेटिक्स आता है. Gotcha. Okay. Yeah. हम्म. So no excuse more. No more excuses. Okay. So Monica, you were not here. We started with self-confidence. तो दक्ष का होमवर्क था. दक्ष, हाँ दादा मैंने आपको सेंड कर दिया. हाँ तो अब बोलो ना, क्या मोनिका दीदी कल नहीं आई थी? हाँ किसी दादा कल. हाँ कल अपन ने. नो, आपके पास है फोन? है आपके पास? नहीं है? है किसके दादा. पास? हाँ, तो फोन में पढ़ो ना. हाँ अपने ग्रुप में लिखा है, आपने मम्मी ने भेजा था, उसमें पढ़ो. हाँ नहीं है? एनीबडी हैज अ फोन देयर? जिया, हाँ दादा. आपके पास फोन है? हाँ हाँ तो निकालो ना, अपना ग्रुप निकालो, उसमें हमने भेजा है. मोनिका, यू कैन मोनिका, यू कैन रीड हिंदी? ओके. नहीं दादा. See, I cannot read Hindi. Okay, so जिया, છે तेरे पास फोन? દાદા ફોનમાં ચાલુ છે ઝૂમ. Oh, okay. Yeah. दक्ष, हाँ दादा. आपका भी फोन में है? दादा मेरे को नहीं मिल रहा अभी. ઓકે. તો પેલું લખેલું યાદ છે તારી પાસે? હા એટલે દાદા જે 5 પોઈન્ટ હતા એ બોલવાના. યસ. हाँ वो मैं बता रही हूँ. હા તો बताओ. हाँ जय सच्चिदानंद.
वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब जो कल हसमुखानंद जी ने बोला था, उसका फर्स्ट पॉइंट है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना है। और सेकंड पॉइंट ये था कि हमें छोटे छोटे स्मॉल गोल्स रखने हैं, जिसको हम जल्दी से अचीव करें तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। थर्ड पॉइंट ये था कि हमें भी फिजिकली हमें फिट फिट रहना है, क्योंकि अगर जो हमारी बॉडी फिट होगी तो हमारा मन भी और चित्त हमारा एकाग्र रहेगा, और हम पढ़ाई और जो भी हमारे 3 गोल्स है उसको अचीव कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट ये था कि हमें नो फियर, हमें डर नहीं रखना है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। फिफ्थ पॉइंट ये था कि हमें हमें डेली सत साधन करने हैं, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम हमारे गोल्स को अचीव कर लेंगे। और सिक्स पॉइंट ये था कि हमें पॉजिटिव पीपल्स के साथ कनेक्ट रहना है, जैसे महात्मा, आप्तपुत्रा, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करेंगे। जय सच्चिदानंद। और दूसरा एक दक्ष ने लिखा है, अ, हर दिन कुछ नया सीखे। तो हाँ you have you should have mentality to learn all this. Curiosity. Okay? हाँ तो दादा। तो तीर्थ, आप अजय, आपने टेनिस क्यों खेलना सीखते? Why you क्या studying? Why you playing tennis? आप प्लेइंग टेनिस क्यों प्ले करते हैं? फिटनेस रहे इसलिए। Oh, so you don't want to improve, become a good tennis player? नहीं, वो भी ऐसे ऐसे भी टेनिस प्लेयर भी बनना है और फिटनेस है, इसलिए दोनों कारण है। हाँ तो ये दोनों आपने बताया नहीं, that is also, so if you take something up you have to be serious about it. Okay? तो मोनिका, हाँ दादा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस किसमें है किसमें नहीं है? ये मिनेश दादा भी आ गए लोग, हम्म। यही सोचे मिनेश दादा। हाँ बोलो मोनी। हाँ दादा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग। पहली बात यह है कि जो भी मैं काम शुरू करती हूँ तो मैंने बहुत फेलियर्स भी देखे हैं उसमें, तो वो ब्रेक होता है तब भी मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करके वो काम करती हूँ। मोस्टली वो खाने के समय होता है। खाना एक बार अच्छा नहीं बनता है तो मूड ऑफ नहीं करती हूँ, जब तक सही नहीं बनता है मैं उस प्रोसेस को कंटिन्यू करती हूँ। उसमें मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और स्टडीज़ में, मैथ्स में मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने 12th से जब से पढ़ाई शुरू की है तब से कोई भी सम ठीक से नहीं हुआ है, बट करती गई तब अभी सही हुआ है सब कुछ। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस जब लोगों के सामने सेमिनार टीच करना हो या कुछ बोलना हो, किसी को समझाना हो, तब नहीं है मेरे पास। डर लगता है उस समय। क्यों? वो उस समय कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग, दादा से प्रेयर करो तो भी ऐसा लगता है कि वो लोग ऑपोजिट पर्सन समझ नहीं पाया तो क्या होगा, वो डिफरेंटली थिंक करेगा, वो थॉट्स नेगेटिवली आते ही रहते हैं और उसके ओके, कारण कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ये मिनेश दादा आपको चाबी देगा, और नाउ यू हैव टेस्ट जिया के साथ, तो देखो कैसा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। मिनेश दादा, ओ मोनिका इज गुड इन हर सब्जेक्ट, पर जब सामने किसी को सिखाने आता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें उसमें वो फियर कैसे निकाल सकता है। वाह, बाय द वे मिनेश दादा, कल हमने वी स्टार्टेड मंडे से सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस किसमें है, किसमें बढ़ाने का है, किसमें नहीं है? तो क्विकली जिया बोलो जल्दी, 5 पॉइंट। हाँ, 5 पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें पॉजिटिव थिंक रखनी है और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें स्मॉल गोल्स रखने हैं, जिसको हम जल्दी से अचीव कर सके और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें फिजिकली फिट रहना है, जिससे हमारा अगर बॉडी फिट रहेगी तो हमारा मन और चित्त भी अच्छे से रहेगा और वो भटकेगा नहीं। फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें फियरलेस रहना है और डरना नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा।
और फिफ्थ पॉइंट ये था कि हमें रोज सत साधन करना है और जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और सिक्स पॉइंट ये है कि हमें पॉजिटिव पीपल्स के साथ कनेक्ट रहना है, जैसे महात्मा आप तो पुत्र जो मतलब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। और सेवंथ? और सेवंथ ये कि हमें रोज कुछ नया सीखना है। क्यूरियोसिटी होना मांगता है नए सीखने का। ओके, सो मिनेश दादा, और जिया का प्रॉब्लम है, उसको फिजिक्स में फंडामेंटल्स आता है, बट जब क्वेश्चंस करती है तब वो अ, अच्छी तरह से आंसर नहीं कर सकती है। और तीर्थ, आपका क्या है प्रॉब्लम, वीकनेस, कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस किधर है आपका? वन बाय वन लेते हैं, वन बाय वन ले लेते ओके ओके। हैं। એટલે ये कैसा है कि आपको सबसे पहले डिसाइड करने का है कि भाई मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो समझ कर मुझे पढ़ना है। भाई जब आपने समझ के पढ़ा है तो कितना भी ट्विस्ट करके पूछेंगे तो आपको भय नहीं लगेगा। हाँ बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि आपने समझ के पढ़ा है, पढ़ाई किया है। वो कितना भी ट्विस्ट कर फिर भी आपको परेशानी नहीं होगी, दूसरों को परेशानी हो सकती है लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, तो ये कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है या कोई काम डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला अंदर सेट ये करो। हाँ ये तो क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, कभी मोनिका जी बोल रही थी कि मैं दूसरों को बताती हूँ और सिखाती हूँ तो मुझे से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हाँ। तो भी उधर पॉजिटिव रहकर डिसाइड करना कि मुझे, मैंने समझ के पढ़ा है और मैं समझा दूंगी, मैं समझा सकता हूँ, क्यों नहीं समझा पाऊंगा। कुछ बात अलग अलग तरीके से करने का तरीका सीख लेने का है। हम्म। तो छोटे बच्चे के साथ अलग अलग तरीके से बात करते कि नहीं करते, करते हैं। उसके लेवल पर जाके बात करते हैं ना। हाँ। वैसे यहाँ भी क्या समझने का कि सामने वाला जो है हम्म। वो पढ़े लिखे नहीं है, हम्म। और वो भी सीख रहे हैं। हाँ। ये जो सही टीचर है वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा आपने ये गलत किया, कि आपने गलत प्रेजेंटेशन किया, आपने बराबर नहीं किया। वो बाद में बोल सकता है लेकिन इन बिटवीन में नहीं बोलेगा, वो आपको करेक्ट करने के लिए बताएगा। देखिए हम्म। यहाँ यहाँ ये बात रखने की, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ। हरिदास का वो फ्रंट लाइन नहीं है, लोगो नहीं है, है दादा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ है ना। हाँ मैंने तो हाँ 2-4 साल पहले कुछ सुना था, अभी तो याद नहीं है कि नहीं वो यूज करते नथिंग कि नहीं वो भी मालूम नहीं है। नथिंग इज करते हैं, इम्पॉसिबल। हाँ। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये यहाँ तो फिट कर देने का, नहीं तो रखो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल की जगह एवरीथिंग इज पॉसिबल रखो, जो आपको सूट करता है वो रख लो। हाँ। क्योंकि जब आपने पॉजिटिव एफर्ट डाला ही है तो व्हाई इट शुड नॉट हैपन। हाँ आपकी 100% इच्छा है तो परफॉर्मेंस सामने आना ही चाहिए, क्यों नहीं आए। हम्म। ठीक है, ऐसा पॉजिटिव रह के आगे बढ़ने का है। और ऐसे ये सोचने की जरूरत है कि सामने वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमें इसलिए देखने का है कि अगर उसको बात समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे तरीके से बात करें इसके लिए। हम्म। लेकिन अंदर रखने का कि वो हमसे कम समझ वाले हैं इनिशियल स्टेज में। कि नहीं तो क्या कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। हाँ हम्म। और साथ में जिसने ज्ञान लिया उसके लिए क्या है, तो कि सबसे पहले देखने का रिलेटिव पॉइंट से, स्टूडेंट है कि टीचर है कि कोई कोई भी जीवात्मा है, और रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। हम्म। रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा, रियल व्यू पॉइंट से मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ।
रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं जिया हूँ, मैं मोनिका हूँ, कि मैं तीर्थ हूँ, जो भी है, हाँ तो रिलेटिव व्यू पॉइंट्स है ना। हाँ देखिए रियल व्यू पॉइंट से हम क्या देखें, हम सभी जीव मात्रा के अंदर हम ही है, हमारे अलावा और कोई है ही नहीं। हाँ बात ख्याल में आ रही है? इस सबके भीतर हाँ हम ही है, तो सबके भीतर मैं ही हूँ ऐसा रहेगा तो आपको फियर किसका लगेगा? चलो। ठीक है नहीं। ठीक है, अभी ये समझ कर भी आज्ञा का प्रयोग साथ में करने का। हाँ दादा। और फिर दादा के पास शक्ति मांगे हुए, दादा ये सब फाइल का संभव से निपटारा करने की मुझे शक्ति दो। आपको ये नक्की करके नहीं जाना कि मुझे अच्छा पढ़ाना है कि अच्छा नहीं पढ़ाना, वो दो में से कुछ भी नक्की नहीं करने का। नक्की क्या करने का है कि भाई ये पढ़ाई की फाइल आई है सामने, तो मुझे ये सामने वालों को पढ़ाने का है, तो मुझे ये फाइल का संभव से निपटारा करना है ना। मुझे ऐसी शक्ति आप दो। हम्म हाँ ये संजोग आए हैं तो मुझे संजोग का निपटारा करना है, ना मुझे शक्ति दो कि ये संजोगों का मैं संभव से निपटारा कर दूं। हम्म ठीक है, इतना ही अंदर फिट कर लेने का है। देखो आज आज मैंने ना बोल दिया था कि मैं आने वाला नहीं हूँ, तो दीपक कांत जी शायद रजनी अंकल को बोलना भूल गए। हम्म तो मैं तो जस्ट ऐसे कैजुअली देख रहा था कि कोई आया कि नहीं आया मेरी जगह, तो मैं नेगेटिव हुआ। नहीं। देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने की है, कोई नहीं आया तो भी आ जाने का, इसमें क्या है? ओ, आपका टर्न नहीं था, आपका नाम न था। नहीं, टर्न टर्न मेरा ही था, लेकिन ओ, दीपक कांत जी से मेरी बात हुई थी कि मैं आज नहीं आऊंगा, ओके। पर ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा। तो फिर ओके। मैंने देखा कि उनका तो एठोर का सत्संग चल रहा है। ओके। ओके। और वेरी फिर गुड। आपका मिस कॉल भी देखा मैंने कि मेरे व्हाट्सएप में रिंग बत्ती नहीं है, तो मुझे क्या करना, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। राइट, राइट, वेरी हम्म तो प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आपको भय नहीं रहेगा उधर। आप आपकी डिजाइन पकड़ के रखेंगे तो आपको फियर रहेगा। हम्म हाँ और साथ में क्या रखने का कि भाई ये सब मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। हम्म और गुरु तो सही पढ़ाएंगे तो भी बोलने वाले हैं, गलत पढ़ाएंगे तो भी बोलने वाले हैं, तो उनका राइट है गुरु का, तो बोलने का राइट है, डांटने का राइट है, मारने का राइट है, सब राइट है उनको। और हमारा हम्म राइट क्या है था कि वो जो भी बोलते हैं हमें सुन लेने का, डाइजेस्ट कर लेने का, जमा कर लेने का है। तो जमा कर लिया तो निपटारा हो गया ना। हाँ आपका मन नहीं बिगड़ रहा, आपको नए राग दोष खड़े नहीं हुए भीतर, तो संभव से निपटारा हो गया कि बाकी रहेगा? सब से निपटारा हो गया। हो जाएगा। हो गया। हाँ, तो कितना आसान है। हम्म तो इतना भी है नक्की करना। हाँ यह बात ख्याल में हाँ आ गई आपको भी? हाँ दादा। हाँ देखिए इतना समझ देखिए अभी ये आज्ञा का भी प्रयोग करने का है, तो साथ में भी रखा हर एक के अंदर मैं ही हूँ। मैं ही हूँ मीन्स क्या होता है कि यू आर वन विथ एवरीवन, यू आर प्लेइंग योर रोल विथ वननेस विथ एवरीवन। तो हाँ जब मैं ही हूँ सभी में, तो मुझे किसका फियर लगेगा? किसी का नहीं। और दूसरी बात समझ लो साथ में कि भाई रिलेटिव पॉइंट से जो भी है, तो व्यक्ति रिलेटिव पॉइंट से जीव है, व्यक्ति है, तो उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है कुछ भी करने की। इंडिपेंडेंट पावर तो है नहीं किसी का। हम्म तो फिर हमें भय रखने का क्या है? इंडिपेंडेंट पावर वाला कोई आ जाए तो हमें भय रखना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है। हम्म हाँ तो क्या तो हमारे हिसाब के बाहर कुछ कर ही नहीं सकता है, अपनी मनमानी कोई कर ही नहीं सकता है, तो फिर भय क्यों रखने का? हम्म हम अकाउंट सेटल करने के लिए, हिसाब चुकाने के लिए बैठे हैं, तो हिसाब जिसका जो है आके आएगा, मांगेगा तो दे देने का, इसमें करने का क्या है?
हम्म। तो फिर भाई कहाँ है? नहीं। नहीं है। चलो ये अंदर बात समझाने की अंतस्करण को, तो अंतस्करण को इसका स्वीकार हो जाएगा तो फियर कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। हाँ। तो दूसरे आज्ञा का प्रयोग करेंगे तो भी फियर कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। हाँ। मतलब आप अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहते हैं तो कर ही पाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं पढ़ा पाएंगे आप। हम्म। तूफानी बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट होता है कि तूफान करने में इंटरेस्ट होता है? तूफान करने में। पान करने में। हाँ, तभी उसको कंट्रोल करने का तो क्या करने का। हम्म। तो बोलेगा मैं छूट देता हूँ आपको, आपको जितनी धमाल मस्ती करनी है करो, लेकिन रूम के बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए। हम्म। रूम के बाहर आवाज जाएगा तो आप भी बाहर चले जाएंगे। हम्म। इसलिए यहाँ प्रेशर करके दबाने की बात भी नहीं है, तो प्यार से हैंडल करने का है, प्रेम से हैंडलिंग करने का है। हम्म। और जब आप हर एक में शुद्धात्मा देखकर बात करेंगे तो वो बात कितनी बड़ी बात हो गई। हम्म। ऐसा कोई देखता ही नहीं है ना। नहीं। आप शुद्धात्मा देखकर बात करेंगे तो उसकी पॉजिटिव असर उसके ऊपर भी आएगी। तो पॉजिटिव असर आ गए उसको, तो हमारे लिए नेगेटिव सोचेगा कैसे? हम्म। इसलिए इतना भीतर सेटिंग कर लेने का है। बराबर है। बराबर है। हाँ। है? तो आज मीनस दादा ने एक दो पॉइंट बोला, तो जीएस कीप ऑन एडिंग दैट। हाँ, मैं till, हाँ। हाँ, अपना लिस्ट हाँ। अभी नंबर 7 है, तो जस्ट कीप ऑन एडिंग दैट, सो यू नो विल मेक अ गुड पॉइंटर सबको देने के लिए। ओके, तो हाँ विल दादा। कंटिन्यू, कल विल कंटिन्यू। मोनिका, हाँ। अभी तो हॉलीडे चला गया, अभी खुशी क्या करती है? खुशी अभी दुकान संभालती है। तो अभी दुकान चलती है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके चल। और छोटी? छोटी यहीं पर है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मुझको बोलना, वो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस किस में है, मस्ती में है तो हमको मालूम है, दूसरा किस में है। ओके, जय सच्चिदानंद। काम चलाने में। जय सच्चिदानंद।